بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے میرا دل ہے سیب سمندر۔ قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آنٹی شہلا اور انکل وحید زمان امریکہ آئے تو حسب معمول اس کے پاس ٹھہرے۔ تمہیں سبین کو یہاں بلوانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، آنٹی شہلا نے اسے سمجھایا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کے درمیان ابھی وہ رشتہ ہی نہیں بن سکا جو وہ ایسی کوئی کوشش کرتا۔ وہاں تمہاری تائی اماں نے تمہارے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے سبین کے والدین کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ تمہارے نام کی جائیداد سبین کے نام لکھوائیں اور یہ کہ تم اس کے لیے الگ گھر خریدو کیونکہ انہیں تم پر اعتبار نہیں ہے۔ سبین کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ عاصم، فی الحال تو معاملہ تمہارے آنے تک ٹل گیا ہے، دیکھا جائے گا۔ عاصم کو یقین تھا کہ 1 سال کی دوری نے سبین کو بدل دیا ہوگا، اس کے خطوط نے اس کے دل میں طوفان اٹھائے ہوں گے، وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی بے تاب ہوگی جتنا کہ وہ خود تھا۔ ساری بے چینیاں دل میں سمیٹے وہ گھر آیا۔ سبین ویسی ہی خوبصورت اور نازک تھی، اس کا سراپا، اس کے وجود کی خوبصورتیاں اسے اسیر کر رہی تھیں، لیکن اس نے ابھی تک سبین سے کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر میں بڑی بہنیں اس کے آنے کی خوشی میں جمع تھیں۔ چھوٹا بھائی محمود جو SSP تھا، اس کی بیوی زرتاشی جو ایک بہت اچھے خاندان کی تھی، سب سے چھوٹا جواد جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، اور اس کی بیوی عارفہ جو اس کی خالہ زاد بھی تھی، بےحد معصوم سیرت، بھولی بھالی، خدمت گزار اور خوش طبع۔ دن بھر سب اسے گھیرے رہتے، ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، سبین مسلسل اس کی نگاہوں کے حصار میں رہتی۔ رات حسب معمول وہ اپنے بیڈ روم میں بند ہو کر لاک کر لیتی۔ 1-2 بار دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ عاصم چاہتا تھا کہ ایک بار وہ کھل کر سبین سے بات کر لے۔ یہ مسلسل جھگڑے کسی اچھے مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر رہے تھے۔ سبین پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، بات کرنے میں دھیما پن تھا، خوش مزاجی تھی، انٹلیکچوئل تھی، خاندان بھر میں خوبصورت اور خوبصیرت مشہور تھی، اٹھنے بیٹھنے اور بول چال میں وقار تھا۔ لیکن عاصم کے سامنے اس کا دھیما پن، رکھ رکھاؤ سب ختم ہو جاتا، زبان پر کانٹے آتے۔ عاصم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں سبین اسے اپنی طرف بڑھنے نہیں دیتی، کیوں اس کی یہ کوشش ناکام کیے دے رہی ہے، کیوں اس سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتی ہے۔ وہ 1 سال بعد آیا ہے اور ابھی تک وہ وہاں ہی کھڑی ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی آمد پر اکٹھے ہونے والے مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد اس سے بات کرنے کے ارادے سے اوپر آیا۔ وہ سامنے ہی لاؤنج میں کپڑے استری کر رہی تھی۔ گرے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں سبک سی سینڈل، دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا تھا، شرٹ پر سلور کلر کی کڑھائی، بالوں کی ایک لٹ اس کے ماتھے کو چومتی ہوئی رخسار پر اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ پرپل کلر کی لپسٹک اور میچنگ نیل پالش، سفید چاندی رنگت کی اداس کلائیوں میں سونے کی نازک چوڑیاں، متناسب چھریرا بدن۔ عاصم ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، وہ نگاہوں کے راستے دل میں اتری جا رہی تھی۔ سبین کو اچانک کسی احساس نے چونکا دیا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ عاصم دروازے کے قریب کھڑا اسے گہری نظروں سے تک رہا تھا، یوں جیسے اس کا سراپا اور شبیہ تصور میں محفوظ کر رہا ہو۔ نگاہوں کی تپش اور یہ والہانہ پن سبین کو گھائل کرنے لگا۔ عاصم کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کی طرف نگراں تھیں، ہر پل، ہر لمحہ۔ میرا دل ہے سیب سمندر، میں قطرہ قطرہ برسوں، تیرے پیار کو پھر بھی ترسوں، میرا دل ہے سیب سمندر۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ اسے دیکھتا ہوا ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز اور نگاہوں کی تپش سے ارد گرد کا تمام موسم لو دے اٹھا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے سبین گھبرا رہی ہو۔ وہ ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ اسٹی کی مہک سبین کے گرد چکرانے لگی، وہ بے خود ہو گئی، لہرانے لگی۔ عاصم کو لگا جیسے وہ قطرہ قطرہ پگھل رہا ہو۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ سبین وہاں ہی کھڑی اس کی سگریٹ اور پرفیوم کی مہک کو محسوس کرتی رہی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا، آنکھیں یکدم آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کیا تھا اگر عاصم رک جاتا، اسے تھام لیتا۔ اس نے کپڑے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے، کچھ بھی کرنے کو جی نہ چاہا تھا۔
पता नहीं आसिम कहाँ चला गया था। वापस नीचे चला गया था, नीचे डिनर करने। वो भी सबके साथ डिनर के लिए नीचे आ गई। वहाँ सभी मौजूद थे, मम्मा, पापा, जवाद और इसकी बेगम आरफा, लेकिन आसिम ना था। समीम का पता नहीं क्यों जी ना लगा और वो चंद लक़्मे खाकर माजरत करके उठ आई। काफ़ी देर के बाद आसिम आया। वो अपनी आदत के मुताबिक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आहिस्ता आहिस्ता सीटी पर किसी नगमे की धुन बजा रहा था। समीर ने अपने बेडरूम से सुना। वो उसे पुकार कर अंग्रेज़ी में कह रहा था, अगर एक कप कॉफ़ी मिल सके तो मैं डाइनिंग में बैठा हूँ। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर उठकर डाइनिंग में आ गई और कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाने लगी। आसिम कार्डलेस फ़ोन उठाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। दोनों कफ खोलकर शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ाए हुए थे। एक हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। गिरेबान का एक बटन हमेशा की तरह खुला था। इसकी नज़रें एक लम्हे को आसिम पर टिक गईं। बटन था ही नहीं। ये शख्स इसका है, कितना गहरा रिश्ता है और कितना खूबसूरत ताल्लुक़, लेकिन वह इसकी तरफ से कितनी लापरवाह है। इसे ये तक खबर नहीं कि इसकी शर्ट पर बटन तक नहीं है और वह इसकी नाराज़गियों, इसकी खफगियों के बावजूद इसका कितना ध्यान रखता है। जबकि वो अपने ही ख्यालात पर हैरान सी होकर समीर ने इस पर से नज़रें हटाईं और कॉफ़ी बनाकर इसके सामने आई। आसिम ने एक नज़र इसे देखा और इसकी नज़र उठी की उठी रह गई। हैरत और तारीफ़ इसके चेहरे पर जादुई हरूफ की तरह उभरी। डार्क ब्राउन शलवार कमीज़ पर सफ़ेद कार्डिगन जिस पर मोतियों का बहुत खूबसूरत काम किया हुआ था, डार्क टेन कलर की हल्की लिपस्टिक, लाइनिंग और हल्की फुल मैचिंग नेल पॉलिश, बाल पोनी स्टाइल में बंधे हुए, टेंड्रप पॉइजन की भीनी भीनी महक जो समीन के वजूद की महक से मिलकर अनोखा सा एहसास पैदा कर रही थी। उदास कलाइयों में ढेर सारी ब्राउन और गोल्डन चूड़ियाँ, बाएं कलाई में नफीस गोल्डन वॉच। आसिम ने भरपूर नज़र इस पर डाली। ये एहतमाम, ये तैयारियाँ, वो ये कार्डिगन फ्रांस से लाया था और रिस्ट वॉच स्विट्ज़रलैंड से। गुलबदनी गुलबदनी, वो गुनगुनाया, ये सब एहतमाम तुम्हारे लिए है आसिम चौधरी। अभी कुछ देर पहले वो ग्रे कपड़ों में थी, तब भी दिल में उतरी जा रही थी, और अब तो कॉफ़ी। सबीन की आवाज़ से दूर से आती महसूस हुई। वो चौंका। सबीन के लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। ओह हाँ, थैंक यू। आसिम ने कप पकड़ लिया और हैरान सा इसकी मुस्कान को देखे गया। आज कहीं शायद कोई मेहरबान लम्हा इसकी ज़िंदगी में दर आया है। ये बनावट नहीं है, ये हुस्न, ये एहतमाम, ये तैयारियाँ। आसिम इसके हुस्न और बदन के सहर में डूब सा गया। सबीन के दिल में बहुत अनोखे से एहसास उमड़ रहे थे। आसिम की बहकती नज़रों के तासुरात इसकी निगाहों से छुप नहीं सके थे। जब वो मुँह एहसास बने और निगरान हो जाए, जब आंखें पढ़ना सीखें और जब कशिश बेवजनी पैदा करे, तो गरूर नफसानी से इसके रंगत और चमक गई। वो आसिम के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो हज़ारों लाखों तो क्या, करोड़ों में एक थी। आसिम बेखुद हुआ जाता था। कार्डलेस फ़ोन से हेलो हेलो की आवाज़ें मुतवातर आ रही थी। दूसरी तरफ इसका दोस्त जमाल था। वो इसके अचानक क्यों खामोश हो जाने पर हैरान था। कल फ़ोन करूँगा। इसने फ़ोन बंद करके मेज़ पर पटक दिया। तख्त तेराशी बस उलटने को है। आज की शब कोई रोशनी बन के दिल में उतरने को है। इसने ज़ेर लब कहा और बेख्तियार होकर सीटी बजाने लगा और तरावीटा की धुन हवा में बिखरने लगी। काफ़ी का कप साइड टेबल पर रख कर आहिस्ता से उठा और सबीन के पीछे जा खड़ा हुआ और झुक कर इसकी जुल्फ़ों की महक लेते हुए इसके कान में सरगोशी की। तुम सेंट एंड की सुप्रानो मारियन से भी ज़्यादा हसीन और दिलकश हो। आसिम को इटालियन पैलेस ऑफ फेस्टिवल के ओपेरा की एक बेहद हसीन गुलकारा याद आ गई, जिसे पूरे सेशन में वो बेखुद और बेइख्तियार होकर देखता रहा था। क्या कोमल से भी ज़्यादा हसीन हूँ? अंदर कहीं कोई चिंगारी भड़की थी जो कुछ देर पहले के एहसासात को जलाकर खास तर कर गई थी। इसकी जलती हुई आवाज़ ने जैसे आसिम के सारे लतीफ़ एहसासात को झुलस कर बाद समूम में तब्दील कर दिया था। हलक तक भर गई करवाहट को निगलते हुए आसिम इसके करीब मेज़ के ऊपर टिक गया और दोनों हाथों से इसके शाने थाम कर नरमी से कहने लगा, सबीन, मैं सोच रहा था कि जब तुम मेरे पास बैठोगी तो मैं तुमसे क्या बात करूँगा। इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, तुम मुझसे भागती फिर रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात शुरू करूँगा।
लेकिन अब जब कि तुमने खुद बात शुरू कर दी है तो सबीन, मैं पूरी ध्यानदारी से कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपने एहसासात और सोचों से आगाह कर दूँ। मैं आपकी सोचों से बहुत अच्छी तरह आगाह हूँ। ये बताएं कौन सी नई सोच उतरी है जो इस कदर एहतमाम से मुझे बात करने के लिए बुलवाया है। सबीन ने एक बार फिर अपनी ज़ुबान के रिश्ते से ज़ख्म लगाया और आसिम ने तहम्मुल से इसे सह लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराया। नहीं यार, सोच तो पुरानी है, लेकिन शायद मैं अपनी सोच तुम्हें अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सका, या फिर तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। क्यों ना एक बार और कोशिश कर देखें। सबीन खामोशी रही। देखो सबीन, मैंने शादी की पहली रात खुलकर खुद ही तुम्हें कोमल के मुतालिक इसलिए बता दिया था कि दूसरों की ज़ुबान से जो कहानी तुम तक पहुंचती वो हकीकत से दूर होती। मैंने तुमसे कहा था कि कोमल एक गुजरी कहानी है। हाँ, मैं अब तक इसकी याद छुटकारा ना पा सका, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार ना था। तुम्हें याद है, मैंने कहा था चलो आओ हम एक दूसरे की मदद करें। तुम अपनी मोहब्बत और खूबसूरतियों से मेरे दिल से कोमल की याद मिटा दो। तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ और हमेशा मोहब्बत करना रहो। मैं कसम खाता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। आइंदा से मेरी सोच और मोहब्बत का महवर सिर्फ तुम होगी, चाहे ये सब करने के लिए मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन तुमने मेरी बातों का जस्टिफाई नहीं किया। तुमने मेरे फैले हुए सवालिया हाथों को बेदर्दी से धत्कारा है। तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना क्या मेरी नेक नियति का सबूत ना था? लेकिन तुम मुझे मुसलसल अपने तानों और अपने रवैये से पीछे धकेलती रही हो। तुमने मेरे किसी ख़त का जवाब नहीं दिया। मैं फ़ोन करता तुम झगड़ने लगती। तुमने मेरी हर पेशकदमी को ठुकरा दिया जो मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए की। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है सबीन? तुम्हारे रवैये से मेरे साथ टूट फूट रहे हैं। ये इतनी शदीद तोड़ फोड़ बिला कसूर ही मेरा मुकद्दर क्यों कर दी है तुमने? मैं तो तही दामन था। तुम्हारा दामन इतना भी दराज नहीं कि मेरे दुखी दिल को ढांप सके। आसिम ने अपनी जलती हुई आंखों को अपनी हथेलियों से रगड़ डाला। सबीन ने अपनी झुकी हुई आंखें उठाईं। आसिम के हाथों में सिगरेट था, आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे। जब से वो आया था सो नहीं सका था सही तरह से, और ये इस कदर स्मार्ट और चार्मिंग शख्स इसका था। आसिम को यूँ लगा जैसे इसकी निगाहों में इसके लिए जज्बों का एक जहान बसा है। इसकी आंखें कह रही थी कि आसिम चौधरी, मेरा दामन तुम्हारी तवक्का से ज़्यादा दराज है। मैं इसमें तुम्हें तुम्हारे वजूद समेत हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रख सकती हूँ। लेकिन फिर इसकी नज़रें झुक गईं। वो कुछ देर सोचती रही। शायद वो सब जो तायम्मा ने इससे कहा था। एक बार फिर इसने नज़रें उठाईं। आपने किसी कोमल से मोहब्बत की थी तो मुझसे शादी क्यों की? इतने ही मजबूर थे आप तो मुझसे कहा होता, मैं इनकार कर देती। इसका लहजा सर्द था और जुमले काटदार, लेकिन आप मजबूर नहीं थे। हकीकत ये थी कि कोमल का फसाना आम हो जाने की वजह से कोई आपसे शादी के लिए तैयार नहीं होता था। यही वजह थी कि तारा ने भी शादी से इनकार कर दिया। मैं वो सब भी जानती हूँ जो आपने मुझे नहीं बताया। ताई अम्मा ने शादी से अगले रोज़ ही सब बता दिया था। अमेरिका यूरोप में आपकी ढेरों फ्रेंड्स हैं। अगर आप एक प्ले बॉय हैं तो आपकी यूरोप में ही रहना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आए हो हैं सबीन? आसिम ने अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाया। ऐसा नहीं है। ताई अम्मा ने जो भी कुछ तुमसे कहा है गलत है। तारा ने मुझसे शादी से इनकार नहीं किया था। मैंने इससे दरख्वास्त की थी क्योंकि मैं कोमल से शादी करना चाहता था और तुमसे शादी करने में मेरी मजबूरी मेरे वालिदैन थे। लेकिन जब मैंने सरेंडर कर दिया तो तमाम तर चाहतों और पूरे खलूस के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। खुदा के लिए सबीन, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से जो भी मैल आ गया है इसे अपनी मोहब्बत और वफादारियों से दूर कर दूँ। लेकिन तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दो। मुझे अपना समझकर अपनी नफ़रत से कुछ अरसे के लिए सही आज़ाद तो कर दो। मैं तुम्हें किसी फ़ैसले पर मजबूर तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फ़र्द जुर्म के लिए मुझे सफाई में कुछ करने या कहने का मौका तो दो। आसिम ने सबीन का हाथ अपनी हथेलियों में थामते हुए इल्तिजा की, लेकिन सबीन हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो, सुलह और अच्छे दिनों की तरफ पहला कदम बढ़ाएं।
खूबसूरत लम्हात को तलाश। आसिम ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें इसके चेहरे पर जमा कर अपना हाथ बढ़ाया। बुलाओ हाथ, जो मुझे याद था सब भूल चुका, जो तुम्हें याद है सब भूल जाओ। वो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से हाथ बढ़ाए इसे देख रहा था। लो थाम लो पगली, सारी खूबसूरतियाँ खुशियाँ तुम्हारी मलकियत हो जाएंगी। वो जैसे सबीन के दिल में झांक रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे सबीन ने अपने दिल में उठने वाली इस ख्वाहिश को मसल दिया और वो बोली तो इसका लहजा पहले जैसा सर्द था। ये कभी नहीं हो सकता आसिम कि तुम कोमल को भूल जाओ, इसलिए कि अगर वाकई तुम्हें कोमल से मोहब्बत थी तो वो कभी दिल से नहीं निकलती, ना निकाली जा सकती है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पहलू में बैठकर तुम किसी और औरत को सोचो। मैं कोशिश के बावजूद अपने दिल को तुम्हारी तरफ माइल नहीं कर सकी। रही ताई अम्मा की बात, तो मुमकिन है वो गलत हो, लेकिन शिजा और शमाइला भी तुम मुझे वही बताया जो ताई अम्मा ने कहा। क्या सारा ज़माना झूठ बोलता है? सभी ने बड़े मुस्तहकम लहजे में लारा की गज़लों का हवाला भी दे डाला। आसिम चौधरी, आपको कोई हक ना था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये वरक़ आप अपनी किताब से फाड़ डालें कि सबीना आप पर आंखें बंद करके एतबार कर लेगी। नहीं, इसने नफ़रत अंगेज़ लहजे में कहा, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आपको भी बर्बाद कर दूंगी और ख़ुद को भी बर्बाद कर लूँगी। इसने जाने के लिए कदम बढ़ाए तो आसिम ने उठकर इसे रोकने की कोशिश की। इस तरह मत जाओ सबीन, जो हुआ इसमें मेरा किसी और का कोई दोष नहीं है। मेरे बढ़े हुए हाथ को मत ठुकराओ प्लीज़ सबीन। देखो तुम इस तरह अपनी और मेरी दोनों की ज़िंदगियों से खेलोगी। सबीन ने एक नज़र इसे देखा और इसका हाथ छिटक कर बाहर निकल गई। आसिम खफ़त और अफसुदगी के आलम में हिलते पर्दे को देखता रह गया। और ताई अम्मा, आसिम ने गुस्से और बेचारगी से अपनी मुट्ठियों को खोला और बंद किया। काश आप ये आग ना लगाती तो शायद मेरी बेकरार ज़िंदगी को कभी सुकून मिल जाता। ज़िंदगी क्यों मुझसे इतनी नाराज़ है? जिस खुशी की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, कांटों वाली झाड़ की तरह हाथ और रूह सब कुछ ज़ख्मी कर देती है। आसिम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर शदीद सर्द रात थी। हर चीज़ धुंध में लिपट रही थी। सहन की ट्यूबलाइट रोशन थी। इसकी थकी थकी सी रोशनी इसे अपनी ज़िंदगी की तरह ही लगी। सबीन हस्बे मामूल अपने बेडरूम में बंद हो चुकी थी। इसने एक नज़र इसके बेडरूम के बंद दरवाजे पर डाली। यह अमावस कितनी तवील है और न जाने अभी कितने कर्णों का कष्ट भुगतना है। वापस कमरे में जाकर इसने गर्म चादर और कार की चाबियाँ उठाईं और कुछ सोचकर जमाल को फ़ोन किया। क्या कल हो गई? जमाल ने इसकी आवाज़ सुनकर कहा, कमाल आदमी हो, कुछ बताए बगैर कल फ़ोन करूँगा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। खैरियत थी ना? मैं और तुम्हारी भाभी तब से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल खैरियत है, और तुम मज़े करो, बीवी के हाथ के पक्के खाने खाओ, सर पर चंपी कराओ। तुम्हें क्या लेना देना और दुनिया से? जमाल हंस पड़ा। यार ऐसा करो, तुम भी आ जाओ, भाभी को भी साथ ले आओ। हम कॉफ़ी पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं और विलियस ब्रूस की डाई हार्ड 2 देखने लगे हैं। इकट्ठे देखते हैं, आ जाओ। दोनों बेगमात कुछ चुगलियाँ कर लेंगी और हम फिल्म देखेंगे। यार तुम्हारी भाभी तो सो चुकी। हाँ मैं आ रहा हूँ। आसिम ने फ़ोन बंद करके सबीन की बेडरूम की तरफ अफसुदगी से देखा। लाइट जल रही थी लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नीचे लाउंज में दाखिल हुआ तो मामा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। रिसीवर रख कर उन्होंने हैरानी से आसिम की तरफ देखा। ये चादर लपेट कर इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मामा, जमाल के यहाँ जा रहा हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊँगा। आसिम का लहजा थका थका सा था। बेटा, उन्होंने दोनों हाथों में आसिम का चेहरा लेकर इसके माथे पर बोसा दिया। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, तुम और सभी अजनबियों की तरह रह रहे हो। मैं सोच रही थी शायद खुद ही हालात बदल जाएं, लेकिन माँ का दिल बेटे के अंदर तक झांक आया था। मैं बात करती हूँ सबीन से, तुम जल्दी आ जाना। नहीं मामा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं हर कोशिश कर चुका हूँ। वो किसी भी तरह किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होती है। आपको मेरी शादी की जल्दी थी। मैंने कहा था कि बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। बार आप परेशान ना हो, आराम करें जाकर, सब ठीक हो जाएगा। आसिम ने मोहब्बत से माँ के हाथ थपथपाए। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये तो उम्र का रोग था।
समीर ने आज इसे बहुत मायूस किया था, लेकिन फिर भी दिल में अंदर कहीं किसी बेहतरी की उम्मीद मौजूद थी। फ़ायदा क्यों नहीं है बेटा, तुम्हारी शादी की है, हमने अज़ाब तो मोल लेकर नहीं दिया। ये कौन सा तरीका है घरेलू ज़िंदगी गुजारने का, कैसे परेशान ना हो। मामा प्लीज़ आसिम, उन्होंने इसकी बात काट दी। जमाल की तरफ जाओ, लेकिन घंटा भर से ज़्यादा मत ठहरना। और हाँ, जमाल की तरफ जाते हुए संगतरों का टोकरा भी ले जाना। तुम्हारे पापा आज बाग से लाए हैं। पापा आ गए? आसिम ने खुश होकर पूछा। हाँ, लेकिन वो सो रहे हैं, अब सुबह ही मिलना। उन्होंने सरफराज को आवाज़ दी ताकि वो संगतरों का टोकरा गाड़ी में रखवा दे। जमाल आसिम का दोस्त था, लेकिन मामा इसे और इसकी बीवी को अपने बच्चों की तरह ही चाहती थी, और इनके बच्चे मामा को दादी जान कहते थे। इसकी हैसियत घर के एक फर्द जैसी थी, और वो हमेशा हर मौके पर इसे याद रखती थी। मेरी मामा का दिल कितना कुशादा और खूबसूरत है। आसिम ने अकीदत और मोहब्बत से इनकी तरफ देखा। बेटा, इंसान सिर्फ एक चीज़ दुनिया में हर एक को दे सकता है, और वो है मोहब्बत और अपनापन। इसमें कभी कमी नहीं होती, ये हमेशा बढ़ती है। इससे अफजल कोई इबादत नहीं। मम्मा ने शायद इसकी सोच पढ़ ली थी। अब तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना। मम्मा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। आसिम लम्हा भर वहीं खड़ा रहा। इसकी आंखें मम्मा के दिल के इन बेपाया वसतों पर नम हो गई थी। अपनी आंखों की नमी छुपाता वो गेट की तरफ बढ़ा, मगर फिर कुछ सोच कर पलट आया। पता नहीं मम्मा सबीन से क्या बात करेंगी, और सबीन किस तरह मम्मा को डील करेगी। नहीं, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है वो इन्हीं के दरमियान रहना चाहिए। वो बाद में मम्मा को बुला लेगा कि सब ठीक हो गया, और सबीन वो यकीनन मम्मा को देखकर परेशान हो जाएगी, और वो पहले ही अपसेट है। वो मर्द होकर असाबी शिकस्तगी का शिकार हो रहा था, तो वो फिर एक औरत थी, नाजुक और कोमल, और आज तो इसकी आंखों में आंसू थे जो वो अपने बेडरूम में जा रही थी। मुझे इस वक्त ऊपर ही होना चाहिए, सबीन के पास, कहीं झगड़ा बढ़ ना जाए। मेरा दिल है सीप समंदर, मैं कतरा कतरा बरसूं, तेरे प्यार को फिर भी तरसूं। मेरा दिल है सीप समंदर। अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सबीन ने इसकी गुनगुनाहट सुनी और कमरे से बाहर निकल आई और लाउंज में खड़े होकर इसे आवाज़ दी। आसिम, जल्दी आएँ, मम्मा आई हैं। इसकी आवाज़ में हल्की लर्जिश थी। आसिम ने एक नज़र इसे देखा, और वो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। अच्छा, मम्मा आई हैं, आसिम ने कदर ऊंची आवाज़ में कहा, और अंदर सबीन के बेडरूम में दाखिल हो गया। मम्मा अभी तक खड़ी थीं। मम्मा आप बैठें प्लीज़, खड़ी क्यों हैं? और फिर इसके ने दरवाजे के करीब जाकर कहा, सबीन, मेरा मम्मा के लिए अच्छी सी कॉफ़ी ले आओ। और वो अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी सबीन जी अच्छा कहकर फ़ौरन ही डाइनिंग की तरफ बढ़ गई। बेटा, तुम तो जमाल की तरफ जा रहे थे, मम्मा ने बैठते हुए कहा। वो मम्मा, दरअसल जमाल ने मोबाइल पर बताया कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं। दोनों अक्सर आउटिंग के लिए चले जाते हैं। मुझे भी इसरार करके बुला रहे थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा और वापस आ गया। बात मुकम्मल करके इसने सबीन की तरफ देखा, जो ट्राली में कॉफ़ी और दूसरे लवाजमात रख कर ले आई थी। वो अभी भी घबराई घबराई लग रही थी। बेटा, मैं तो इसका कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। वो मम्मा, आपके लिए दूध में ओवल्टीन डाल कर लाई हूँ। कॉफ़ी तो हम दोनों पियेंगे। तभी आसिम के मोबाइल की घंटी बजने लगी, जो सबीन के बेड साइड दराज में रखा था। वो अक्सर रात को अपने घर बातचीत करने के लिए मोबाइल अपने पास रख लेती थी। फ़ोन पर गुफ्तगू करने में ये खदशा था कि कहीं और एक्सटेंशन पर सुन ना ले। मम्मा ने दराज खोल कर मोबाइल निकाला और ऑन करके हेलो कहा। दूसरी तरफ जमाल था, जिसका ख्याल था कि आसिम रास्ते में होगा। इसलिए इसने मोबाइल पर कॉल किया था कि इतने देर क्यों लगा दी। बेटा, आसिम तुम्हारी तरफ नहीं आ सका, सबीन को इसे कहीं जाना पड़ गया, और वो सुबह आएगा। मोबाइल ऑफ करके उन्होंने आसिम की तरफ देखा, तो आसिम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बेटा, बाहर जाओ तो मोबाइल साथ ले जाया करो। मम्मा के होठों की तलाश में मध्यम सी मुस्कुराहट थी। जी मम्मा, आसिम ने आहिस्ती से कहा, और सबीन की तरफ देख कर आँख मारी। वो सटपटा गई। तुम कॉफ़ी पियो दोनों, मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम दोनों को नसीहत करना चाहती हूँ। सबीन, उन्होंने सबीन की तरफ देखा। बेटा, तुम हरगिज़ बार का खुदाबंदी में मकबूलियत हासिल नहीं कर सकोगी अगर तुम्हारा शौहर तुमसे खुश ना हुआ। और तुम आसिम, बदला लेने वाले से माफ़ कर देने वाला ज़्यादा मोतबर और बड़ा होता है, और ज़िंदगी खुदा ताला का आयद किया हुआ फरीज़ा है, जिसे कमा हक़ का वो अदा करने की कोशिश ना की जाए तो बंदा खुदा का मुजरिम होता है। मियाँ बीवी के दरमियान जो लुत्फ़ अंस होता है,
तुम दोनों अभी भी इससे आगाह नहीं हो। लेकिन सबीन बेटा, आसिम ने तुम्हारे लिए झूठ बोला, मुझे अच्छा लगा। ये वो उनस और लगाव है जिसके लिए इसे झूठ बोलना पड़ा। मैं नाराज़ थी, लेकिन मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के लिए कहा है कि वो तुम्हारा और तुम इसका लिबास हो। इसे समझो और ज़िंदगी के वो दिन जो सबसे खूबसूरत हैं, इन्हें ज़ाया करोगे तो बुढ़ापा एक पछतावे के सिवा कुछ ना होगा। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, लेकिन फिर जाते जाते रुकी। घर में सन्नाटा सा रहता है, कोई शोर शराबा हलचल हो तो हमारा बुढ़ापा भी बहल जाए। मम्मा सॉरी, मैंने झूठ बोला। आसिम इसके साथ ही बाहर निकला और सीढ़ियों तक इन्हें छोड़ने आया। मम्मा हंस पड़ी। शादीशुदा ज़िंदगी में मर्द बहुत ज़्यादा झूठ बोला करते हैं, अभी तो इब्तिदा है। आसिम भी किसियाना सा होकर मुस्कुराने लगा। मम्मा को छोड़कर वापस पलटा तो समीन अपने बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके लॉक कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो इसके बेडरूम के बाहर खड़ा कई बार दस्तक के लिए हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। समीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बातों का असर नहीं हुआ था तो मम्मा के कहे कहीं भरम रख लेती। वो गुस्से में जलता हुआ अपने बेडरूम में चला गया और नींद की टैबलेट लेकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर जब तक नींद ना आई बार बार इसका ध्यान सबीन की तरफ चला जाता। शायद वो मुंतज़िर हो, शायद इसने इसे सोचा हो उसकी एक ही दस्तक पर, और यूं ही सोचते वो सो गया। सुबह उठा तो सबीन अभी तक सो रही थी। इसे ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना था। वो आरफा को बताकर चला गया। इसने सबीन को नहीं जगाया, जाने रात कब सोई होगी। आपके हौसले भी देखते हैं सबीन बेगम, कब तक। वो मुस्कुराया और आरफा से छेड़छाड़ करता इस्लामाबाद के लिए निकल खड़ा हुआ। और इसके अदम मौजूदगी में ताया ताई, तीनों चचा चच्चियाँ, मैं, सबीन के वालिदैन इनके घर में जमा हुए, जिसके मुताबिक तफसील इसे बाद में पता चली। सबीन ने सुबह होते ही फ़ोन करके अपनी वालिदा को आसिम के साथ और ममा के साथ होने वाली गुफ्तगू बता दी। नतीजतन वो सब यहाँ मौजूद थे। ताया ने जायदाद के बंटवारे के सिलसिले में बात का आगाज़ किया। सफ़ीर अहमद नहीं चाहते थे कि जायदाद तकसीम हो और वो अहद जो उन्होंने अपने वालिद से किया था टूट जाए, लेकिन वो देख रहे थे कि सबकी शदीद ख्वाहिश है जायदाद तकसीम ना करने से झगड़े बढ़ने का इम्कान है। सो उन्होंने मामा के कहने पर जायदाद की तकसीम का फैसला कर लिया। ठीक है, अगर सबका यही ख्याल है तो जायदाद तो खैर तकसीम हो जाएगी, लेकिन मेरी बच्ची में क्या ख़राबी थी जो आसिम के लिए आपने इनकार कर दिया था। ताई अम्मा को अचानक ही ख्याल आया था। आपा, जवान औलाद की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मर्ज़ी तो खैर सुना है, सभी इनके साथ भी नहीं थी। कोमल थी कोई लड़की जहाँ वो शादी करना चाहता था। बेचारी सबीन पर तरस आता है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। आसिम जैसा शख्स तो एक पर कनात नहीं कर सकता। कोमल के हाँ से इनकार हुआ, तारा ने भी इनकार कर दिया। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है भाई। अब परदेश में घूमता फिरता है, वहाँ भी इसकी बहुत सारी औरतों के साथ दोस्ताने हैं। ऐसे शख्स को कौन अपनी बेटी ब्याह सकता है। हमारी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन बेचारी सबीन। बस कीजिए आपा, मम्मा लड़ने लगी। आसिम को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, वो मेरा बेटा है। इस जैसा लड़का पूरे ख़ानदान में नहीं रही। कोमल तो किसी लड़की से शादी की ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं। इस तरह की बातें आपको सबीन के सामने हरगिज़ नहीं करना चाहिए थी। सबीन रोती हुई उठ कर अपने कमरे में चली गई और इसकी वालिदा भी इसके पीछे ही चली गई। तो सबीन के वाजिद हुसैन ने कहा, जायदाद का मामला तो निमट गया, अब ज़रा मेरी बेटी का मसला भी हल हो जाए तो बेहतर है। आपकी बेटी का क्या मसला है और किस बेटी का। सफ़ीर अहमद को हैरत हुई। सबीन का और किसका। ताई अम्मा ने वाजिद हुसैन के बजाय जवाब दिया। आपा, ये आप क्या कह रही हैं। सफ़ीर अहमद को अभी तक हैरत थी। आप बच्चे तो नहीं हैं कि यहाँ इतने लोगों में बात दोहराई जाए। वाजिद हुसैन गुस्से से बोले, दोनों के दरमियान 1 साल से झगड़े चल रहे हैं और आप बेखबर हैं। आसिम पहले तो अमेरिका चला गया और फ़ोन पर भी झगड़े, और अब आया है, तब भी एक दिन भी नहीं बनी दोनों में। भाई साहब, शादी के वक्त आपने हमें आसिम के माशकों के मुतालिक नहीं बताया, जबकि हम ये भी जानते हैं कि अभी भी वो यही कुछ करता रहता है। इसे बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं है। सबीन का मुस्तकबिल महफूज इसी सूरत में हो सकता है कि आप आसिम के हिस्से की जायदाद सबीन के नाम कर दें। सफ़ीर अहमद ने गुस्से से इनकी तरफ देखा। तुम जानते हो वाजिद हुसैन,
تم کیا کہہ رہے ہو؟ بچوں کے درمیان اگر کوئی معمولی تو میں ہوتی ہے تو تم نے سبین کے مستقبل میں ہی غیر محفوظ کر دیا۔ میں اور عاصم کی والدہ سبین کو بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں۔ میں بیٹی کا باپ ہوں سفیر احمد، کیا گارنٹی ہے کہ کل عاصم کی زندگی میں کوئی عورت آ گئی تو؟ سبین کی والدہ جو اس اسنا میں اوپر سے آ چکی تھی روتے ہوئے بولی، براہ کرم آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہن، میں نے تو کبھی دونوں کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، معمولی رنجش تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اگر میں آپ کو بات کو سچ بھی سمجھ لوں تو کیا جائیداد سبین کے نام کرنے سے اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا؟ اگر گھر بسنے ہوں تو واجد حسین جائیداد کے بغیر بھی بس جاتے ہیں، اور اگر نہیں بسنے تو جائیداد کے ساتھ بھی نہیں بستے۔ پھر بھی دائی اماں نے ان کا ساتھ دیا۔ جائیداد سبین کے نام ہو جائے تو عاصم سبین کو چھوڑنے یا دوسری شادی کا نہیں سوچے گا، اور اگر اس نے ایسا کر بھی لیا تو سبین اپنے بچوں کی پرورش کر سکے گی۔ دائی اماں کے بولتے ہی چچیاں بھی ان کی حمایت میں بولنے لگیں۔ تو یہ سب اجتماع اس لیے تھا۔ ماما جو سبین کی والدہ اور والد کی سب سے کے ساتھ آمد پر حیران تھیں، ساری حقیقت جان گئیں۔ یہ عاصم اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ اسلام آباد سے کل آ جائے گا تو اس نے جو کہا، جائیداد ہمیں اولاد کی خوشیوں سے زیادہ پیاری نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ بھی سن لیں آپا، انہوں نے دائی اماں کو تنبیہ کی۔ سبین ہماری بہو، ہماری بیٹی اور ہماری عزت ہے، عاصم اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور آپ جو چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر کی اگر ایک ایک اینٹ بھی بک جائے تو میں سبین اور عاصم کو گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ دائی اماں غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ رات سب کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر جانے کے بعد وہ اوپر فرسٹ فلور پر آئیں تاکہ سبین کو دلاسا دے سکیں اور سمجھا سکیں۔ یقیناً دائی اماں کی باتوں نے اسے مزید بھڑکا دیا ہوگا، لیکن سبین نے ان کے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود نہیں کھولا تو وہ افسردہ سی نیچے آ گئیں، جانے ان کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔